So a little bit about us. हमारा स्टूडियो जो है उसका नाम है भुवनेश्वर एक्सपेरिमेंटल आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडियो. वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. जगन्नाथ पंडा हमारे डिज़ाइन मेंटर है. एंड बीड्स का जो the definition and the goal and vision is that we are a organization and a studio that makes elegant, ethnically designed, inspired by Odisha designs. जो environmentally friendly है. हम we don't use any plastic. Our designs are completely handmade. Don't use any molds, and we have a firm belief that there is a power in art and design that can make people's lives better. और हमारा जो vision statement है, it says that we want to inspire lives with inspiring design from Odisha, because this is a land which has a very rich culture. बहुत सारे crafts हैं, बहुत सारे cultural aspects हैं जिसके ऊपर काम इतना हुआ नहीं है. So Beats is a studio that aims to do a lot of that. As a part of it, we don't want to be just a product design studio. We also want to be at a place जहाँ पे हम लोग art हो या design हो उसके बारे में we foster conversations, because जब तक अच्छे ideas नहीं आएंगे, उन ideas को contemporary ideas और traditional ideas दोनों को अगर हम लोग explore नहीं करेंगे तो interesting products है, interesting art pieces या artworks नहीं बनेंगे. So that's something that we've always focused on, and that's why we have art design and conversation. A quick line on it: art design and conversation lies that it attempts to explore methodologies and motivations जो indigenous craftsmanship के foundation है. This encompasses an exploration of how craft items intersect with our daily existence and the environment, particularly within the framework of contemporary design ideologies and the emphasis on sustainability, which is becoming important in our lives. As part of this series, we will try to unravel ecological and communal consequences associated with mass manufactured goods that have become an important part of our lives. We want to underscore the importance and pertinence of native artisanal traditions and craftsmanship. And we also want to spotlight that there is a transformative role of these mediums such as ceramic or clay or other crafts in reshaping the perception that we have today of contemporary craftsmen. So there is a heavy emphasis in our vision around understanding the role of the craftsman in our day-to-day life. And somebody who is very close to this, somebody who is working very closely in a medium that we are also working in. Virender is here today, so thank you so much, Virender, for joining. और आपका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, which is basically a bio, but then we will talk to a lot more about your inspirations and about things that drive your practice. So Virender Yadav is a practicing artist who's a Master of Fine Arts from painting from the College of Arts in New Delhi, lives and works there. He had his first solo show in 2017 called Idhar Udhar, Here There. It was at One Shanti Road, Bangalore, at the Clark House Initiative, also in Mumbai. He participated in the 12th Berlin Biennale, and he's also participated in 13th Bamako Encounters, the African Biennale of Photography. He is the artist in residency for Pro Helvetia Studio Residency in 2019 in Zurich, and also the India residency at Darling Foundry in Montreal. And he's also worked, his work has also been supported by the Inlax Shivdasani Foundation and Tata Steel. He's done a project with them also. Right now, we know that Virender has just come back from Kazakhstan and he's getting used to coming back to India. And so, welcome, Virender. Thank you so much for taking the time to join us on this conversation. Thank you, Sandeep. I need I think the best part of Virender is obviously we know each other for quite a while. हम लोग पहली बार मैं वीरेंद्र से मिला था 2017 में, जब उत्सव फाउंडेशन भुवनेश्वर में हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, कला सेतु, which was supported by Raza Foundation. And it was a very interesting concept कि
हर आर्टिस्ट एक डिफरेंट फील्ड के साथ काम करेगा. वीरेंद्र वाज वर्किंग विद राइटर्स एंड he was, I think it was the first time आप उड़ीसा आए थे. Is that true? First time, and he was doing something on Odia literature, on a language that he did not understand, on a script that was alien to him. And I still remember walking into his residency room और पूरे Odia किताबों से पूरा room भरा पड़ा था, and he was trying to understand and create something that was inspired by Odia literature, and the work was amazing. I think during this conversation I'll ask Virender आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, आपके experience के बारे में. But just to level set expectations and having everybody here, Virender, my first question to you is that thoda just talk us through your journey, like as an artist, your evolution of your practice, what has been the journey so far. And you're a tremendous artist, all of us know, but like what is your journey, उसके बारे में थोड़ा बताएं so that we can all of us get to know you a little bit. मेरा स्कूलिंग धनबाद में हुआ था और मेरे स्कूल के टीचर थे अब्दुल अजीज, वो शांति निकेतन से थे. वहाँ उनसे जो प्राइमरी जो आर्ट का एजुकेशन था मैं क्लास कर रहा था. बेसिकली क्लास करने का आइडिया ये था क्योंकि मेरे फादर ब्लैक स्मिथ टूल्स बनाते थे वर्कर के लिए माइंस में. मतलब वो था कि मतलब मुझे आर्ट मतलब वहाँ से एक इंटरेस्ट था. फिर मैं आर्ट कॉलेज में आया कि मतलब मैं डिजाइन पढ़ के उनके ऑक्यूपेशन पे हेल्प कर, वो ऐसा आइडिया था, इसलिए वो इनकरेज भी कर रहे थे. वो धनबाद से बाहर मतलब बनारस में पढ़ने के लिए भेजना, मतलब वहाँ से बट जब मैं 3rd ईयर 4th ईयर तक जब थोड़ा सा समझा आर्ट को, तो मुझे लगा कि मतलब ये फॉर्मल एस्पेक्ट से कुछ बियॉन्ड की चीज़ें हैं. तब मैं वो बैचलर कंप्लीट कर रहा था. तो वहाँ से मेरे कुछ इंटरेस्ट आया कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरे आसपास के, तो मैं उनको डॉक्यूमेंट करना, उनसे बातें करना, स्टोरी कलेक्ट करना, इस तरीके का मतलब इंटरेस्ट था. वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे मतलब जो आर्ट बोलते हैं, जैसे जो एक प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, जो एक लैंग्वेज, वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे इस एरिया में काम करना है, जानना है. राइट. बट लाइक जब आपका प्लान था कि यू वांट टू हेल्प योर फादर, तो मतलब कैसे हेल्प करने का आपका प्लान था कि कला सीखने के बाद वहाँ जाके क्या हेल्प करने का आपने सोचा हुआ था? लाइक व्हाट वाज द आइडिया? मतलब क्योंकि वो टूल्स बनाते हुए मैं अक्सर देखता था, वो ड्राइंग करके, ग्राफ करके, कट करना, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जो एस्पेक्ट है, मतलब शायद अगर डिजाइन हम ऐड करेंगे तो शायद वो एक अदर लेवल पे जा सकता है. मतलब उस तरह का प्लान था कि मतलब शायद मैं उसमें और अच्छा कर सकता हूँ. और एकदम इनिशियल ऐसा था, ऐसा क्योंकि मैं एकदम इंस्पायर भी था उसमें, साथ में था. क्योंकि एक वर्किंग क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल था कि आपको आर्ट पढ़ने के लिए, जैसे स्कूल से ही मेरे को आर्ट का ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा, को ट्यूशन करता था. तो मतलब ये एकदम इम्पॉसिबल भी है वर्किंग क्लास फैमिली में जो मतलब आर्ट के लिए इनकरेज करे इस तरह का. जो मतलब छोटे शहर में, धनबाद जैसे शहर में, मतलब एकदम इम्पॉसिबल है, सोचना भी मुश्किल है. तो शायद ये भी ऐसा लगता था कि शायद मेरे फादर का भी इंटरेस्ट था कि मैं इसमें कुछ करूँगा. बट उन्होंने कुछ देखा होगा, उनको लगा होगा कि यार ये आदमी आर्टिस्ट बनने का ऐसा हुनर है, टैलेंट है, एंड वी शुड हेल्प हिम एंड एनकरेज हिम. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या उनको पहले से ही पता था कि आप में ये जज्बा है बिकम एन आर्टिस्ट? नहीं, वो मतलब जैसे जनरली सारे आर्टिस्ट का होता है कि मतलब मेरा ज्यादा था, मतलब जैसे बाकी सारे आर्टिस्ट का होता है ड्राइंग, पेंटिंग, मेरा ज्यादा मन इसमें ही लगता था. मतलब क्ले में मैं हरदम घर पे काम कर रहा था. अच्छा. तब मेरे फादर को लगा कि मतलब इसका इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने स्कूल के टीचर जो थे उनसे ही बोला कि मेरे को और बड़ा इसमें सीखना है. फिर मैंने संडे का क्लास के लिए, मतलब वो 5-6 में होऊंगा उस टाइम में, क्लास के लिए ज्वाइन करा दिया. फिर 10 तक क्लास करते करते मतलब वहाँ से मतलब 9-10 तक एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे आर्ट कॉलेज में जाना है. पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ साइंस को थोड़ा. तो फिर समझ में आया कि मतलब आर्ट कॉलेज के लिए भी आपको मतलब एक दूसरे लेवल का स्ट्रगल है, मतलब और ज़्यादा पढ़ना है आपको, और ज़्यादा जानना है. राइट. तो वो उस डायरेक्शन में मतलब 10th के बाद ही मैं बनारस चला गया 11th-12th करने के लिए, ताकि मैं 11th-12th करने के दौरान थोड़ा आर्ट को समझ पाऊँ, क्योंकि एकदम क्लियर था कि मुझे आर्ट कॉलेज में जाना है. तो मैं 11th-12th में जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप मतलब कोई फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट जो भी लेना है, मैंने फाइन आर्ट्स लिया.
ताकि थोड़ा सा मतलब आइडिया हो, मतलब आर्ट कॉलेज में एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन का जो वो सब होता है, ऐसा ही था। एंड जब मैं आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने ना मेंशन भी किया कि ये टूल्स में आप हेल्प करने का सोच रहे थे कि यू विल हेल्प योर फादर विद द टूल्स, बिकॉज आपके बहुत सारे कामों में यू कैन सी इम्प्लीमेंट्स जो आप आर्ट वर्क में यूज़ करते हैं, सो देर इज़ डेफिनेटली सम एंगल फ्रॉम देयर. बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट यू ऑल्सो मैंशन in your artist statement and in all your works कि आप एक टाइम पे you had a opportunity to look at the brick kilns, जो brick kiln में लेबर काम करते थे, तो आप उसको ऑब्जर्व करने का आपको मौका मिला, and that was a trigger point for you which fundamentally changed and also evolved your practice in a certain direction. So I will share some photographs of your work as you're talking about it, but just talk us through कि क्या हुआ, what was that trigger, क्या strike किया, and how has that evolved into a practice right now for you? जैसे कि बताया कि मैं धनबाद में मतलब पला बड़ा, तो लेकिन बेसिकली मैं यूपी से था, बट मेरे फादर का माइंस में जॉब था, तो मतलब हम वहाँ पे रह रहे थे धनबाद में। तो मतलब एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब कि मतलब माइग्रेंट वर्कर का जो स्ट्रगल है, मतलब वो मैंने बहुत, क्योंकि हम यूपी से थे और हम धनबाद में मेरे फादर के जॉब की वजह से हम वहाँ पे रह रहे थे, तो मतलब जो एक लोकल प्रोटेस्ट होता है ना कि मतलब जो लोकल ट्राइब्स है और जो आउटसाइडर वर्कर हैं, वो मतलब बचपन से प्रोटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये मैं देखता रहा, क्योंकि माइंस बंद कर देना चाहिए, बाहरी लोगों को भगाओ। फिर जब मैं ये बैचलर जब बनारस में कर रहा था, तो मैं वो एक ग्रुप से मिला, वो जो धनबाद आसपास के रांची और आसपास के लोग थे, हमें कोटा लैंग्वेज के थ्रू मिले थे, क्योंकि वो कोटा धनबाद में ही बोलते हैं, ट्राइब जो संथाल वो है, और यूपी में भोजपुरी। तो मुझे वो लैंग्वेज एकदम स्ट्राइक किया कि मतलब यहाँ पे कैसे मतलब ये लोग, तब पता चला कि वो पूरा जो ब्रिक किलिंग का जो एक एरिया है, वो सेक्टर है पूरा, वो सेम ट्राइब को इधर सारे ब्रिक किलिंग में काम करते हैं, तो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और काम ज्यादा करते हैं। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ सब ये सब काफी जरूरत है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, मतलब वो उनका, जब वो उधर से आके इधर स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर हम उधर जाके, तब मुझे वो इसमें इंटरेस्ट आया कि मतलब मुझे जानना है, मतलब एक तरह से मतलब मेरे फादर थे, वो टाटा का माइंस था, फिर भी वो एक तरह से ऑर्गेनाइज था, मतलब जैसे मैं एकदम प्रिविलेज था कि वो कंपनी का स्कूल था और मैं पढ़ के निकल आया, लेकिन ये सब ब्रिक किलिंग में यहाँ पे कोई स्कूल और ये सब कुछ होता नहीं है। तो मतलब तो एक सेक्टर को मैं देख रहा था बहुत करीब से, मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब एक। तो आपने कैसे लाइक डिड यू स्टार्ट एन एंगेजमेंट, वहाँ जाकर विजिट करके उनके साथ बात करते थे टू अंडरस्टैंड कि उनका एक्सपीरियंस क्या रह रहा है और उसको कैसे आप समझना चाहते थे, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू इट विद देम? तो जैसे जब मैं मिला, तो उन लोगों ने ही बोला कि यहाँ बहुत सारे हमारे गांव के लोग हैं जो जितने बनारस के आसपास में जो ब्रिक फैक्ट्री है वहाँ पे काम करते हैं। पहली बार मैं ऐसे ही विजिट करने के लिए गया था, मिलने के लिए। बट एक उसी टाइम में मैं प्रोजेक्ट कर रहा था वो थंब प्रिंट को लेके, उसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया था, और मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा था वर्क से। उनको लग रहा था कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू गया हूँ, मतलब ऑफिशियली आधार कार्ड बनाने के लिए। तो वो कन्वर्सेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मेरा आधार कार्ड बनवा दीजिएगा, ये गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, तो फलाने ने कुछ नहीं किया, इस तरीके से। मतलब जबकि मतलब पहली बार मुझे पता चला कि मतलब वहाँ पे मतलब एक अलग ही पूरा कन्वर्सेशन है, मतलब वो लैंग्वेज लेबरर है, मतलब वहाँ पे मतलब थंब प्रिंट का मतलब बहुत कुछ है वहाँ पे, मतलब थंब प्रिंट से सैलरी मिलना है, मतलब उनका आइडेंटिटी सब कुछ वहाँ पे वो होता है। इसलिए वो था क्योंकि वो ब्रिक किलिंग में वो जो ब्रिक काम करते गर्म ब्रिक को निकालते रहे, तो उनका सारा थंब इम्प्रेशन वॉश आउट हो जाता है, थंब प्रिंट नहीं आता। तो मैंने वो सेम जो जैसे गवर्नमेंट आधार कार्ड को प्रिंट कर रही थी, मैंने सेम उसी तरीके से पोर्ट्रेट का फाइल बनाया और उनका थंब प्रिंट उनके पोर्ट्रेट के ऊपर कलेक्ट किया। मतलब वो आता नहीं है थंब प्रिंट, और मेरा इंटेंशन भी था कि मतलब पोर्ट्रेट को नहीं दिखाना, तो मतलब उनका आइडेंटिटी ऐसे भी वो एकदम ब्लाइंड आता है। तो फिर मैं ऐसे ये वाले वर्क में देख सकते हैं, इसका डिटेल भी होगा। तो इस तरह से मैंने 300 लोगों से कलेक्ट किया था। ये मास्टर में मैं कर रहा था, ये मास्टर का।
तो इन लोगों का जब आप थंबनेल लेते थे तो कुछ देयर वाज टू बी लाइक ब्लैंक आता होगा बिकॉज वो सब जल गया होगा उनका। हाँ, पूरा ब्लैंक ही था, क्योंकि वो थंबनेल नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसका वो टाइटल भी रखा था इरेज फेसेस। अच्छा, और ये जो सैंडल्स वाला आपने ये कलेक्ट किया था, दिस वाज अनदर पार्ट जो आपने ऑब्जर्व किया था वहाँ पे? हाँ, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मेरा काफी इंटरेस्ट हुआ ये सेक्टर में, और पर्टिकुलर एक ही बिग चीज पे मैंने काफी टाइम दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले तो ऐसा था कि प्रोजेक्ट जैसा था, बाद में मैं मतलब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, मुझे और जानने का मतलब जैसे एक इनिशियल था कि मास्टर में हूँ मैं, प्रोजेक्ट करना है, असाइनमेंट है, ये वो एकदम सर इनिशियल आइडिया ऐसा था। बाद में जब मैं घुसा तो मतलब एकदम मैं एक के बाद एक कैसे होता है एकदम आप अंदर चलते गए, उस काफी टाइम काम कर रहा था। तो ये मतलब ब्रिक किल में कम्युनिटी को मैं समझने का कोशिश किया कि मतलब वो जो जैसे ये सेक्टर है जो यहाँ पे फायरिंग वाले जो ब्रिक किल में तो चिमनी को जो हैंडल करते हैं, राइट, पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, ये सब कम्युनिटी है जो उनका काम है, वो एक्सपर्ट है फायरिंग का, वो 3-4 जनरेशन से वो फायरिंग का ही काम। और ब्रिक किल में सबसे टफ जॉब भी यही है फायरिंग का, और सबसे मेन भी इनके ऊपर ही सारा कारोबार है। राइट, ये जो जॉब है मतलब इसमें 10 साल के बाद इनका लाइफ नहीं है, वो पैर जल जाते हैं, सारे सेंसलेस हो जाते हैं। तो ये जितना एक्सीडेंटल पैर था वो मैंने फोटोग्राफ्स किया था, डॉक्यूमेंट किया था एक्सीडेंट। तो ये सारे सैंडल्स जो आप यहाँ पे रखे हुए हैं ये आपने कलेक्ट किया था उनसे कि ये पहन के लोग होंगे? पहन के वो काम कर रहे थे, तो मतलब आइडिया वही था कि मतलब क्योंकि ये मैं कलेक्ट किया था तो मतलब काफी टाइम तक मैं 1 साल 2 साल तक ऐसे स्टूडियो में रखा रहा, डिस्प्ले नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि इसको लेके मैं कुछ करूंगा, मतलब ऐसे सोचता था कि मतलब कुछ टेक्स्ट इंस्क्रिप्ट करना है या कुछ इस तरह का आइडिया था। और एंड तक आते आते मुझे लगा कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मतलब इसमें जो रॉनेस है, हाँ इसमें वो रॉनेस है, इसमें जो कोई 1 साल से यूज किया हुआ है वो मतलब वो दिखता है, मतलब वो स्ट्रगल और स्लीपर में। तो मुझे लगा एज इट इज इसको रखने का डिसीजन मतलब 1-2 साल के बाद अच्छी नहीं किया, क्योंकि और फिर इसको इस तरह, और ये वर्क बर्लिन बिनाले में डिस्प्ले हुआ था। इसका फर्स्ट डिस्प्ले बर्लिन में हुआ था ना? पहले भी आपने इसको पहले डिस्प्ले किया था वही ब्रिक किल के पास भी आपने कभी डिस्प्ले किया था कि उन लोगों ने भी देखा कि क्या हुआ है काम का ये रिजल्ट? ब्रिक किल के पास मतलब ऐसा कन्वर्सेशन होता था जब लैपटॉप वगैरह में हम ऐसे बैठते थे, क्योंकि काफी 7-8 साल हो गया था, मतलब वो एकदम फ्रेंडली हो गया था। मतलब बाद में हम वो बच्चों के साथ भी काम कर लेते, तो हर मंथ ही जाते थे। क्यूरियोसिटी की ये बंदा आता है हमारे साथ बात करता है, ब्यूटीफुल प्रिंट्स ऐसा सब लेता है, करता क्या है सब करके? सो डिड दे आल्सो हैव अ क्यूरियोसिटी अबाउट यू एंड योर वर्क? नहीं, एक टाइम के बाद ना मतलब उनको लगता था कि वो इनके गांव के हैं और हमको हेल्प करना है, बस एक ऐसा रिलेशन हो गया। अच्छा, हाँ मतलब वो मतलब उनको पता था, मतलब वो देखते भी थे, हम बात भी करते थे, मतलब उसमें खास करके जब वो बच्चों के साथ जब काम कर रहे थे वहाँ पे ज्यादा हम क्लोज होते। इवन ब्रिक किल के जो ऑनर थे उनके साथ भी जो गैप था वो कम हो गया ने, मतलब वो जो था उन लोगों ने फंडिंग करना भी चालू किया, बच्चों को इंकरेज करने लगे, इस तरह का मतलब काफी मतलब 5-6 सालों के बाद चेंज हो गया। बट ये जो पीस ऑफ वर्क है आपका, जो ये दिस सीरीज, इट टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ लेबर इन इंडिया इतना स्ट्रांगली, दिस लाइक अ वेरी पर्सनल फीलिंग है इसमें। Is this something that you are still exploring in your other pieces of work? या ये जो practice है जो initial years का ये था, how is it evolving and how do you want it to go forward? मतलब ये वाला काम आप कैसे, like what do you see for this in future? Because ये तो काफ़ी जगह पे display भी आप कर चुके हैं, I remember this in different exhibitions. So what is your thought process around this? मतलब वो मतलब लिंक तो होता ही है, मतलब जैसे मैंने बोला नक्की कि मतलब मैंने डिसाइड किया कि मतलब एक ही जो किल है मतलब वहाँ पे मतलब थोड़ा डीप में जानने का, क्योंकि सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट ऐसे ही हाल है। तो एटलीस्ट मतलब क्योंकि मैं एक अच्छे से देख रहा था, दोनों साइड को देख रहा था, दोनों स्टेट में मैं रहा हूँ, एक्सपीरियंस रहा है, तो कि मतलब राइट है कि मतलब इसमें मतलब और थोड़ा डीप जाके बात किया जाए और समझा जाए कि मतलब इसमें है क्या। Right. और जैसे कि मतलब हम लोग को देखा भी है कि जैसे मैं ये काम कर रहा था लॉकडाउन में हुआ, मतलब
तो लॉकडाउन में भी मतलब हम सब लोग सफर किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो लोअर क्लास को ही पड़ती है। मतलब जो सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ वो लेबर क्लास को ही हुआ। राइट राइट। कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है उसमें भी, तो मैंने ये इसी का जब वो काम कर रहा था तो लॉकडाउन में मैं वहाँ विजिट तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो ये 4-5 साल के जो एक्सपीरियंस थे, 2 साल मैंने पूरे ड्राइंग किए चारकोल में। ये सारे सेम एक्सपीरियंस जो मैंने देखा था, बट वो अलग फॉर्म में आए, क्योंकि मैं जनरली 3D और स्कल्पचर इस फॉर्म में काम कर रहा था। बट वो 2 साल ऐसे थे कि मतलब आप बाहर भी नहीं निकल सकते, कुछ स्टूडियो में जो पड़ा है उसमें काम करना। तो मैं कभी चारकोल में काम नहीं किया था, पहली बार मैंने चारकोल और सॉफ्ट पेस्टल में पूरे ड्राइंग किया। राइट। बट दिस विल ऑलवेज बी योर सेंट्रल फॉर्म ऑफ इंक्वायरी। आपका जो आर्टिस्टिक इंक्वायरी है ये हमेशा इसके साथ काफ़ी क्लोजली जुड़ा रहेगा, फ्रॉम वट एवर आई हैव सीन सो फार, बिकॉज द प्लाइट ऑफ लेबर, आप जैसे पर्सनली आपका एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द थिंग। इज दैट करेक्ट? और other things that you're also exploring in your artistic practice? कुछ और भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या this is the main thing that has always been the driving factor? मुझे लगता है कि मतलब इसको मैं ठीक से समझ लूँ वही बहुत बड़ा बात है। It's an ocean. हाँ, मतलब और क्योंकि मैं क्लोजली जुड़ा मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब इस पे ठीक से काम करना मतलब एक तरह से मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे Right. बात करना मतलब मैं ठीक से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को, तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ला के बाहर मतलब पब्लिक पे रखे, ये जो भी मतलब सोशियो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है उसको सामने ला के एटलीस्ट रख सकते हैं, मतलब बात डिस्कशन हो सकता है। Correct. So the other thing I wanted to ask, this is because I was there in the very first artist residency जो आपने किया था, which was at Utsa Foundation. But since then, since 2017, you've participated in many international residencies, and obviously आपके काम का वहाँ पे काफी सराहना हुआ है, and people have a very close look at your work in many places. जैसे हमने बायो में भी पढ़ा, आप इतने सारे residencies में participate कर सकते हैं. And so my question is, how has that influenced your work? Like, इतने सारे रेजिडेंसीज में आप गए हैं, देयर इज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, जो उनके लेबर प्रॉब्लम्स भी है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर लेबर प्रॉब्लम्स। उनके साथ भी देयर आर डिफरेंट इश्यूज दैट आर देयर दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड। तो हाउ हैव दीज रेजिडेंसीज इन्फ्लुएंस्ड योर वर्क? पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, एंड पार्ट बी इज what is it that you enjoy about these residencies? How has it really influenced your work, and how do you enjoy this? Like, which is your favorite residency out of all of this? So उसके ऊपर थोड़ा बताएं। मेरा जैसे फर्स्ट इंटरनेशनल रेसिडेंसी रॉयल वेसिया के साथ था, स्विट्जरलैंड, और मैं पहली बार मतलब इंडिया से बाहर भी ट्रेवल कर रहा था। एक तो मतलब वो अलग ही एक्साइटमेंट था, और वो रेसिडेंसी मतलब स्टूडियो रेसिडेंसी है, मतलब आपको प्रॉपर स्टूडियो मिलता है आपको काम करने के लिए। और रेसिडेंसी का मतलब जैसे जितने हमने वेस्टर्न थ्योरी, पहली बार मैं रोथको को देख रहा था, पहली बार एंसलेम कीफर का काम देख रहा था फिजिकली, तो वो एक अलग ही मतलब पोस्ट करता है, मतलब एक आर्टिस्ट को जो पहली बार आप माने मोने को देख रहे हो, मतलब है ना, मतलब मतलब आप पढ़े हो सिर्फ और सामने पहली बार देख रहा था, तो वो एक मतलब अलग एक ऐड करता है। और दूसरा ये है कि मतलब आप रॉयल वेसिया का मतलब थोड़ा काफी बहुत सपोर्टिव है, इनका मेंटर होता है, आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि मतलब वो काफी मतलब ऑर्गेनाइज है, पास टेबल पास मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब आप मतलब हर कोने में जा सकते हो, एटलीस्ट स्विट्जरलैंड का कोई भी म्यूजियम सारे देख सकते हो। तो वो But did you feel कि एक after doing one of these residencies there was an influence on your work? क्या आपका मीडियम चेंज हो गया या थॉट प्रोसेस कुछ चेंज हुआ? ऐसा did you have that kind of an experience? हाँ, क्योंकि जो मेरा रेसिडेंसी था स्विट्जरलैंड में वो रोटे फैब्रिक था, वो भी पहले फैक्ट्री था, बाद में वो इंस्टीट्यूशनल वो बन गया। तो मेरा जो प्रोजेक्ट भी था मैं उसी पे इनविजिबल लेबर का ही बात कर रहा था, तो मतलब वो ऑलरेडी उस बिल्डिंग का एक हिस्ट्री है, मतलब वो मतलब उसके जो स्कार्स है, मतलब पुराने जो ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे अभी भी रखे हुए हैं, कुछ टूल्स रखे हुए उस तरह का बिल्डिंग में, मतलब वो एज इट इज है सारे, मतलब वो चिमनीज है। तो वहाँ पे मतलब जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था तो वहाँ पे हमने क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसा था आप लोगों से मिल नहीं सकते हो, तो मैंने ऑर्गेनाइज किया था मतलब ऐसे ब्रिक मेकिंग वर्कशॉप था, मतलब वीक में ऐसा मतलब आप
फ्री है, आप आके ज्वाइन करो, बिल्ड योर ओन ब्रिक। तो वहाँ पे काफी कन्वर्सेशन हुआ, मतलब ये डिस्कशन हुआ, मतलब इस तरीके से। और मुझे समझ में आया कि मतलब एक मेरा रिसर्च है और एक वो कैसे दिख रहे हैं, उनका पूरा एरिया है, मतलब वो इकोलॉजी और ये टर्म में दिख रहे हैं, मैं वुमन और ये सब इस एस्पेक्ट में देख रहा था, मतलब वायलेंस और वो। तो मतलब काफी ये सब चीजें ऐड किया, फिर बाद में मेरे लिए भी मैं इसको और ठीक से देखा, समझा कि मतलब मेरा एक रिसर्च है बट एक पर्टिकुलर वो भी ऐसे देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये था कि क्योंकि जो पहला जो अपना इंडिया में जो ब्रिक किल सेट किया गया था मैंगलोर में, वो जर्मन स्विस के उन्होंने सेटअप किया था मैंगलोर, उनके पास भी। तो इस तरह का काफी डायलॉग हुआ, मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद तो इस तरीके से फिर बाद में मेरे प्रैक्टिस में भी आए कि मैं और थोड़ा डेप्थ में देखना चालू किया। राइट। एंड also मॉन्ट्रियल में भी जो आपने रेजिडेंसी किया था, दैट वाज आल्सो क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, जो डार्लिंग फाउंड्री वाला था, बिकॉज़ आई हैव सीन सम ऑफ द वर्क फ्रॉम द डार्लिंग फाउंड्री वाला काम। कैन यू टॉक अस थ्रू इट? उसमें स्पेसिफिक कुछ इम्पोर्टेंट वाला जो काम था, कैन यू टॉक अस थ्रू दैट? डार्लिंग फाउंड्री में इंटरेस्टिंग ये था क्योंकि वो उसका जो फाउंड्री का जो पार्टनर है वो टाटा है, और अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट मतलब उसके ऊपर ही था। तो मैंने प्रपोजल में ही डाला था कि उनका जो माइंस है वो विजिट करना है। अच्छा। वो सेम माइंस, मतलब एक ही कंपनी का माइंस, एक इंडिया में है, एक वहाँ पे है, मतलब तो मुझे वो देखना रहा। मतलब उसको वो एक इंटरेस्टिंग था कि मतलब सेम इंडिया का कंपनी वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, इंडिया में ऑलरेडी उसको कितना मतलब वो है, वहाँ पे एकदम ऑर्गेनाइज है, मतलब हर चीज रूल रेगुलेशन एकदम परफेक्ट है, वहाँ माइनिंग हो रहा है पूरे डोम के अंदर। तो मैंने वो सारा फोटोग्राफ्स किया था, वो एकदम क्यूबेक का बॉर्डर था पूरा, वो न्यूजीलैंड ऐसा है उस जगह पे वो माइंस। राइट। तो अब मुझे बताइए, आप because your art and your practice talks so strongly about issues जो बहुत मायने रखते हैं in terms of labor challenges, in terms of exploitation of people, in terms of migrant labor. तो इन चीज़ों पे जब आप बात करते हैं and you use it in your practice, आपको कभी ऐसा लगता है कि ये एक तरह का art activism है which can be driven a lot further to not only make people aware of it but also to make them angry or controversial? ऐसा कभी आपको लगता है कि उस तरह का काम आपको करना चाहिए? आपको गुस्सा आता है कि ये देख के कि there is a lot that's happening that should be reflected in their art practice? Or do you like to keep a balanced view? Because आपके काम में एक philosophy है, एक element है, एक beauty है, rawness भी है, but at some time do you feel that this work should also be used as some kind of an activistic platform to talk more about this and make people a lot more angry about this whole thing? क्या आपको भी ऐसा गुस्सा आता है इस पे? मतलब गुस्सा, मतलब जैसे मैंने बोला कि मतलब एकदम ये नेचुरली मैं इस सब्जेक्ट पे ऐसा काम किया। मतलब पहले तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब जब मैं आर्ट को कुछ भी नहीं समझता, मतलब पता नहीं था कंटेम्प्रेरी आर्ट, कम्युनिटी आर्ट, ये जो टर्म्स ये सब पता भी नहीं था, तब से मैं ये सब चीजों पे देख रहा था, मतलब इंटरेस्ट था नेचुरली। राइट। तो मुझे जब मैं चीजों को देखता हूँ, मतलब जजमेंट तो नहीं, लेकिन जो है मतलब एटलीस्ट उसको सही ढंग से एटलीस्ट रख सकते हैं, मतलब पता होना चाहिए कि मतलब हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। तो मैं ज्यादा मतलब क्योंकि हम मतलब आर्टिस्ट के पास इतना भी पावर नहीं है कि वो चेंज कर देगा, बदल देगा, ऐसा कुछ मतलब इतना नहीं है। बट जितना मतलब हमारे पास जो है एटलीस्ट हम उसको सही ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, कि जिस तरीके से हम परोसते हैं सामने। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, मतलब और ये एंड सो जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, तो जो आपका जो काम जब आप दिखाते हैं एंड देन पीपल आके उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो what has been your experience? People कैसे react करते हैं उसको देख के? Do they feel sad? Do they feel frustrated? Do they feel helpless? What kind of emotions do you see normally? Because you've shown this work, इतने सारे जगहों पे आपने दिखाया, इंडिया में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया। What do you normally experience when लोगों के साथ जैसे ये जब मैं स्विट्जरलैंड में जब ये ब्रिक मेकिंग का वर्कशॉप कर रहा था, तो वहाँ पे काफी ऐसे प्रेजेंटेशन डायलॉग हो रहे थे। तो मतलब अब वो तो थर्ड वर्ल्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रिक,
उनको आइडिया भी नहीं है ब्रिक कैसे बनता है, ब्रिक क्या हो रहा है, मतलब वो मतलब एटलीस्ट तो जब हम वो ब्रिक का जब वर्कशॉप का वो कर रहे थे तो मतलब पहली बार मतलब वो ब्रिक को उठा रहे बोल के मतलब 3 kg का एक ब्रिक होता है, मतलब ये आइडिया ही नहीं है, मतलब वो तो मतलब वो जो स्ट्रगल है कि मतलब ये स्लीपर अभी इंडिया में यूज होता है, मतलब ये तो मतलब ऐसा म्यूजियम जैसा है, ये है, वो है, मतलब तो सेट तो होते हैं मतलब, बट ये जरूरी भी है कि उनको भी बताना है कि मतलब ये मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट है वो सारा फैक्ट्री थर्ड वर्ल्ड में क्यों है, हाँ, जिनको मतलब तो इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट भी है आप इस तरह का जब प्लेटफॉर्म पे जब डायलॉग होता है जब आप रखते हो तो मतलब उनको पता भी होना चाहिए। आपने अभी रिसेंटली अभी you've done a residency in Kazakhstan. You've just shared a few of these photographs जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अभी. Can you talk us through your experience in Kazakhstan और ये जो काम आपने किया हुआ है? Can you talk us through this? What was the experience like और ये वाला काम आपका इंस्पिरेशन किस? बाद में ये जो प्रोजेक्ट था ये क्यूरेटर और आर्टिस्ट को इनवाइट किए थे सारे कंट्री के, और वो पब्लिक प्रोजेक्ट था, ये सारे जो भी आर्टिस्ट बना रहे थे वो पब्लिक में डिस्प्ले हो रहा था। जी. वो मतलब आप पहले से वो मटेरियल वो जो रिसर्च पेपर था वो सब आपको दे रहे थे, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो मैंने ये किया मतलब सीसेल है, ये जो स्टोन है वो वहाँ पे सीसेल का स्टोन है, फोसिल्स ये है, बहुत सारे कंट्री में बैन है अभी इसको यूज नहीं करने देते हैं, बट वहाँ पे सबसे चीप मटेरियल और सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें ही काम करना है, क्योंकि माइनिंग का एक्सपेक्ट था मेरे लिए भी ये था, क्योंकि मैं टेराकोटा और इसके साथ काम कर रहा था। तो सेम वहाँ पे मतलब वो जो सोवियत और ये सब जो मेमोरियल बहुत सारे कंट्री में था, तो मैंने ये वो मेमोरियल का ही फॉर्म बनाया, बट मेरा जो ब्रिक किल का जो एक्सपीरियंस था जो लेबर का और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो सेम उसी ये सोवियत सारे 70s 80s के वहाँ फ्ली मार्केट से मैंने ये फाउंड ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया था, ये जो टूल्स है जी. आयरन, So interesting. तो वो ये है, और ये जो टेराकोटा का है ये सारे मैंने उधर प्रोड्यूस किया। So ये जो सीशेल वाला जो आप बता रहे हैं ये सीसेल का ये स्टोन है। अच्छा, so you collected it from there या मतलब there was a अपना माइनिंग है सीसेल का। हाँ वो सब इतना प्रीशियस मटेरियल है, बट वो पूरा घर में टाइल्स में इस तरह से यूज हो रहा है, ये बेसिकली वो लोग टाइल्स की तरह यूज करते हैं। अच्छा, मैंने इस फॉर्म में वो कट करवा के ये यूज किया था। ये काफी मतलब ये 10 by 10 हाइट 40 फीट है। हाँ, it's quite big. मतलब हाँ। size wise तो काफी बड़ा लग रहा है. And so this took like a month for you to put together. So बट टीम था प्रॉपर, तो थोड़ा मतलब वेल्डिंग और ये सब लेबर सारे। Abhi, you've recently started working with terracotta, right? I was reading also about some of the works that you were doing in terracotta, and terracotta has become one of your favorite mediums. But what is it that you like about the medium? Why terracotta? Why did you pick that? टेराकोटा में मतलब 3D में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, मॉडलिंग करता था मैं, मतलब कॉलेज से ही मैं ज़्यादातर 3D में ही काम किया, बट कभी प्राइमरी टेराकोटा में काम नहीं किया। बट ये जब ब्रिक किलिंग में मैं जब ये बच्चों के साथ जब वर्कशॉप कर रहा था तो आर्ट रीच के साथ काम कर रहा था, वहाँ पे आर्ट रीच के साथ काम किया और भी IFA के साथ काम किया उस प्रोजेक्ट के लिए। तो सभी जगह थोड़ा फंडिंग का इशू था, बहुत छोटा फंडिंग होता है, 75,000 1 लाख ऐसे पूरे 1 साल का ऐसे करके। Right. मतलब ऐसा कुछ मटेरियल ढूंढना था कि मतलब जिसमें हम तो मुझे वहाँ पे ब्रिक किल में सबसे जो सस्ता वो क्ले इजीली अवेलेबल है, आप हायर कर सकते हो आराम से। मैं कई सालों से बच्चों के लिए ये काम कर रहा था, वो शायद आप प्रेजेंटेशन में वो है, स्लाइड भी है, मैंने डाला है। I'm just going to pull it out. तो वहाँ से मतलब एक्सीडेंटली मतलब 2018-19 में जब वो काम कर रहा था तो मैं पहली बार मुझे लगा कि मतलब क्योंकि ये जो कंपोजिशन मैं अभी टेराकोटा का करता हूँ सारा वो ब्रिक किल वाला ही कंपोजिशन है क्ले का। इसमें आपने शेयर किया हुआ है टूल्स। हाँ ये लास्ट में हाँ ये सब तो ये काफी टाइम से मैं काम कर रहा था इस तरीके से। तो ये नॉर्मल क्ले इसमें जैसा
आर्ट कॉलेज में कैसा होता है, क्ले को प्रिपेयर करना है, ऐसे बनाना है, मतलब एक और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। बट ये नॉर्मल ब्रिक किलिंग का क्ले है, बस इसका कंपोजिशन वो लोग जैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैंने सीखा उनसे। मतलब मेरे पास डिजाइन था बट पूरा मटेरियल हैंडलिंग मैंने उनसे सीखा। टेराकोटा ये वाले इन सारे बच्चे वही उसी में ही काम कर रहे थे, उसी के वो। हाँ, सारे ये सेम सारे ये। गॉड। तो एक काफी मतलब ऐसे रख, तो फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मतलब अपने काम को भी मैं इसमें एक पहले तो वहीं पे फायर छोटा छोटा काम बनाया, वहाँ पे फायर किया। फिर बाद में मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट हुआ लॉकडाउन के बाद से, मतलब फिर मैंने फिर वो केलिंग सेटअप किया, फिर काम कर रहा हूँ। अब तो अभी टेराकोटा में आई थिंक आप तो बता रहे थे कि यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेरामिक्स ट्रिएनाले व्हिच इज गोइंग टू बी इन दिल्ली इन जनवरी। तो इस ये अभी ये आपका मीडियम ऑफ चॉइस बन गया है, यू वांट टू डू मोर वर्क ऑन दिस, राइट? सो व्हाट इज योर विजन विद टेराकोटा अभी गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि मैं अभी ये जो सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, मतलब ये एक काफी वो लिंक करता है इस मटेरियल के साथ। और तो वो एस्पेक्ट में भी देख रहा था मैं, मतलब क्योंकि ये जो ट्रिएनाले का भी जो प्रोजेक्ट है पूरा वो सेम ही है, ब्रिक किलिंग का ही है। जो 7-8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो प्रपोजल भी सेम उसी के ऊपर था। तो मैंने टेराकोटा को ही मतलब उसमें, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअली भी, क्योंकि मटेरियल मेरा मतलब प्राइमरी मीडियम होता है, मतलब राइट। हाँ, मतलब वो फर्स्ट चॉइस थी। मतलब मैं मटेरियल पे काफी काम करता हूँ। अगर नए प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ अलग मटेरियल भी है, तो अगर मुझे अगर वो नहीं भी आता है तो मैं प्रॉपर टाइम देके उसको सीखता हूँ, उसके स्किल्स को समझने के लिए। तो टेराकोटा का मैं काफी टाइम से अभी ये काम कर रहा था, मतलब छोटे छोटे, बट अभी ट्रिएनाले के लिए प्रॉपर मतलब सेम डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। Is there any other medium that you want to work with? Yeah, it's an exploration right now. तो वो तो पता नहीं है। This is a good time to ask you that question. When you came here, this is the first time I saw your work. आपने you worked on wood. नीम के पेड़ के साथ काम किया था. That was a beautiful work. So before I go any further, you have to tell this crowd कि वो वाला काम क्या था और what was your thought behind it? Because it was a brilliant piece of work. जैसे मैं बोला कि मटेरियल मेरा प्राइमरी वो सब्जेक्ट होता है। मतलब क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ मटेरियल के थ्रू ही उस लैंग्वेज का, जो मटेरियल का जो एसेंस है उसके थ्रू बात, मटेरियल का जो पावर है इस तरीके से। तो वो क्योंकि जब मैं वहाँ पे वो उड़िया पोएट के साथ जब काम कर रहा था, तो मैं फ़ॉन्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट विजुअली बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। वो शायद इसलिए भी कि मैं डिज़ाइन पढ़ा था, समझ रहा था। Right. तो मैंने वो, और वहाँ पे बहुत कॉमन था। तो मतलब वो जो, क्योंकि मैं ये वर्कर और ये सब इस एस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो वहाँ से इस टेक्स्ट को उसमें इंस्क्रिप्ट करने का मतलब ही वही था कि मतलब वो जो स्ट्रगल है वो उसको हम इसके थ्रू बात कर सकें। वो तो फाउंड ब्लॉग था, उसके ऊपर मैंने कार्व किया था अपना हाथ जगन्नाथ। I think उसमें भी you had this experience of asking different people कि what does it mean Jagannath for different people, and अलग लोगों ने अलग answers दिया था। What was that experience? मतलब क्योंकि मैं जिस तरीके से रीड कर रहा था वो लैंग्वेज को लेके, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो मतलब जैसे मैं एज ए डिज़ाइन, मेरे को वो फॉन्ट बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब, और वो साउंड कुछ इस तरीके से कर रहा था। बट वो कोई मतलब कि ये स्ट्रगल है, मतलब आप करोगे तो इसको कंप्लीट कर लोगे। फिर कोई अपने तरीके से कोई ड्यूल विनिंग का बात कर रहा था, मूवी में बनाया इस तरीके का। तो काफ़ी मतलब 20-25 लोगों का वो इंटरव्यू था, उसमें मैंने वो हाँ जो आपने रिकॉर्ड किया था, डिस्प्ले किया। Right. I was trying to find out the photograph, but maybe I'll find it later on. I'll share with the group. So I think we're coming towards the point जहाँ पे मुझे ये पूछना है कि 2017 से 2023 you've done so much work, इतने सारे residencies किए, इतने सारी जगह गए, what and this growth that has happened and you are still growing in that path, what would be your where do you see yourself in the next 3-4 years? Where is Birinder Yadav going with his work, with his legacy, focusing on
the plight of labor in India, the challenges of all of that. So where do you see yourself in 5 years? Where are you going? जैसे मैं बोला कि पहले मतलब एकदम जो इनिशियल था कि एकदम फॉर्मल एस्पेक्ट पे था, अभी मतलब वो तो ऐसा है, आप चलते जाओ उसमें डूबते जाओगे। तो मतलब मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मतलब भी काफी 7-8 साल, मतलब अभी मुझे लगता है कि मतलब अभी मैंने टच ही नहीं किया। अभी जब मतलब समझा चीजों को, तो इतने सारे चीजें काम करने के लिए, तो मतलब वही है, आप कंसिस्टेंसी, मतलब वो जितना जरूरी हो जाता है वहाँ पहुँचने के लिए, मुझे लगता है कि अभी और टाइम चाहिए काम करने के लिए। मतलब इस सब्जेक्ट पे तो और बहुत कुछ किया जा सकता है. There's a lot बहुत more to कुछ read किया into it. So there is a lot more to work on. Is there anything that I think a lot of students also here who have joined, what would be your one single big advice in your journey so far that you would talk to our students? Because the struggle is real for our students. It is a difficult path considering ये हमारे country में arts is still an evolving area. What would be a one thing for students that you would say based on your journey and your lessons learned and everything you have done so far? आप क्या बताना चाहते हो अभी? मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है या जो मैं अभी इतने टाइम में जाके चीज़ों को समझा है, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो अगर है तो फिर आप, मतलब वो लैंग्वेज भी डेवलप हो जाएगा, आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। प्रॉब्लम वो होता है जब हम चेंज करते रहते हैं, थोड़ा ये थोड़ा इधर उधर, मतलब कभी देख के इन्फ्लुएंस हुए, फिर वो के मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अगर कंसिस्टेंसी रहे तो आप पहुंच ही जाओगे, अगर आप सही Are you talking about consistency in thought, in the practice, मतलब consistency in from that perspective, right? हाँ, मतलब पर जो भी आप कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी से फोकस होके थोड़ा टाइम दे के करो। जैसे हम करते हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, फिर कल कुछ और किया, फिर मतलब अलग अलग सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, थॉट भी चेंज होते रहता है। तो मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं देते हैं। अगर हम टाइम देंगे तो शायद वो डेवलप होता है चीज़ें, वो लेके जाता है अपनी तरफ वो चीज़ें। And by time you mean also like talking to people, reading, experiencing, traveling, मतलब all of that. That is required. वो एक जर्नी का पार्ट ही है। हाँ, and for you, residencies have worked really well. That is something you would recommend artists to do more, isn't it? हाँ, मतलब ये जैसे यंग आर्टिस्ट के लिए रॉयल ग्रेसिया, ये सब सारे इंडिया रेसिडेंसी जो हैं, Getting out of the comfort zone उस हिसाब से. हाँ, मतलब ये गैस वर्क है, इंडिया रेसिडेंसी, डार्लिंग फाउंड्री है, ऐसे बहुत सारे अभी हैं। मतलब रेसिडेंसी तो ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। And but जैसे अभी हम लोग का I attended a bunch of seminars during COVID where artists were coming in and talking about the struggle of actually day to day क्या करेंगे क्या नहीं, and at the same time also trying to produce work or do the practice. How do you how have you handled such situations in the past जहाँ पे ये एक genuine issue रहता है? मतलब वो तो मुझे लगता है कि आपके पास वो चॉइस रहता है, मतलब आर्टिस्ट के, मेरे पास, मतलब सबके पास वो रहता है कि मतलब जैसे मैं ये जिस तरह का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब एक तो मतलब फैंसी स्लैब कमर्शियल एकदम सेलेबल बना सकते हैं सर्वाइव करने के, बट अगर मैं इसमें स्टिक रहना चाहता हूँ कि मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यूनिवर्सिटी में अशोका में क्लासेस करता हूँ, NID में क्लासेस लेता हूँ, स्टिल पार्ट टाइम, तो इससे स्मूथ रहता है। तो मतलब वो बैलेंस स्ट्राइक करना इज अप टू द आर्टिस्ट की आप हाउ कैन यू स्टे ट्रू कंसिस्टेंट टू योर प्रैक्टिस, उसको डेवलप करो, एट द सेम टाइम मैनेज योर अदर एक्सपेक्टेशंस. Brilliant. So I think we're coming towards that time कि I would like to open the floor to questions. Virender है आपके सामने. You've heard about his journey, about his practice, and the residencies he has done, and how he explores different themes which he's very attracted to, especially around labor, migrant labor, exploitation. If you have any specific questions, please feel free to ask. We still have a bit of time in this.
I know we have राजेश, उपेंद्र, बहुत सारे लोग हैं जो उपेंद्र को बहुत करीबी से जानते हैं. ऐसा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? This is a good time. While I think the questions are coming, and you can also pop your questions on the message. Upinder, अभी जो ceramics triennale जो हो रहा है, is there a particular theme that you're exploring with your terracotta work जो आप दिखाना चाहते हो, or is it going to be something completely new that you're going with? मतलब सिरामिक त्रिनाले का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, मतलब ये 6 मंथ का है, मतलब वो टेम्पररी रहने का सेटअप करते हैं, फिर वो डिस्प्लेस हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट सीजन के लिए फिर से वो लगाते हैं. Right. मतलब एक जो घर फिर से बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर ऐसे, तो बहुत सारी चीजें जो जब डिस्कार्डेड चीजें था मैं कलेक्ट करता था वहां से. तो उसको मैं मटेरियल के थ्रू, कास्ट के थ्रू, जैसे वो बेसिकली जो फोकस है वो जैसे वहाँ पे कुछ जो कपड़े वगैरह या कुछ ऑब्जेक्ट्स, उनके जो चीजें हैं, मतलब वो मैं कलेक्ट करता था काफी. जो इतने सालों में जो कलेक्शन था उसको मैं कास्ट करता हूँ मटेरियल के थ्रू. जो अभी मैं बात कर रहा था, इनविजिबल लेबर, मतलब वो बेसिकली वो पूरा आइडिया उसका ही है. मतलब उस पे उसको मटेरियल में ट्रांसफर करके कैसे, मतलब चीजें, मतलब एक डिमोलिश करके करने के बाद भी, मतलब वो जो लेफ्ट ओवर है, मतलब तो वो सब चीजों को मैं सबूत के तौर पे कास्ट करके मैं टेराकोटा में, जैसे कपड़े हैं, कपड़े को मैं ब्रिक की तरह, मतलब कास्ट ब्रिक, क्योंकि सारे लोअर कास्ट के वर्कर हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट का टाइटल ही है कास्ट ब्रिक. वो सारे उनके कपड़े से वो मटेरियल टेराकोटा में वो ब्रिक कास्ट है. तो इस तरह से कुछ प्रोसेस में है. Oh, it's going to be something really exciting. I think Rajesh, did you have a question? कुछ आया था मैसेज में, but I couldn't see it. Yes. Hi वीरेंद्र. आपसे पूछना था, आप जब भी बोले you're taking classes in design, is it like a formal classes या जैसे अशोका में जो मेरी क्लासेस हैं वो मतलब आप प्रपोजल देते हो, आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू आपको जो पढ़ाना है, मतलब आपका जो प्रैक्टिस है, जैसे कंप्लीटली आर्ट, तो मेरे वो सेम मैं सब्जेक्ट को वहाँ पे शेयर करता हूँ. तो वो करिकुलर कोर्स है, शाम का उनका 2 घंटे का क्लासेस होता है. मतलब उसमें कोई फाइन आर्ट्स का नहीं होता है, सारे ओवरऑल सब्जेक्ट के रहते हैं, इलेक्टिव है. अच्छा, ये क्लास आप करते हैं, मतलब डिजाइन के लिए सीखते हैं? नहीं, मैं क्लास लेता हूँ, मतलब अपना. ओके. सो आप जब भी द वन इन काजाकिस्तान, आई गेस, जो स्कल्पचर बनाए थे, जो सी सेल्स का था, उसके बारे में थोड़ा समझना था. दोज ब्लॉक्स जो था वो सी सेल से बना था या कुछ अलग मटेरियल था? नहीं, वो सी सेल का ब्लॉक है. मतलब वो सी सेल का स्टोन है, फिर वो लोग टाइल्स की तरह बना के वो बेचते हैं. मतलब वो स्टोन का ब्लॉक होता है. तो क्योंकि वहाँ पे इतना सस्ता है लेबर ना, तो वो उसको फ्लोर में, मतलब बिल्डिंग का फ्लोरिंग के लिए, इसके लिए यूज करते हैं. जबकि अभी जैसे क्यूबा में वो एकदम टोटली बैन है, मतलब प्रीशियस मटेरियल है. अच्छा. cool. वही था. Yes, up to you. I think Julius, you had a question. Go for it. Yeah. Hi, Virendra. Hello, after a long time, we started the residency together from Utsa, and we have already. And also, I mean, it's been quite a long time we are seeing each other, and then I have a very good understanding of the way you portray in your work, like labor, class, and caste, in a very societal aspect, and because that specificity of a certain class. So even the way you understand the language. So my question is to you, how vernacularity of a language, when you also came to Odisha at the residency time, you are talking about a certain kind of phrase which is very popular, and it has a very vernacular meaning to it. So how when you work in a site like
heavy labor like agricultural labor and then mining labor. So how you communicate through language with them, and when it's translate to through your artistic practice, and you translate into a language which is visual language. So how that vernacularity transfer into your work, and how that artistic journey justify itself. Like the question is how you understand the language and play around it with vernacularity and then labor and a visual language. So how does that impacting you? So जैसे जो अपना हाथ जगन्नाथ था उससे पहले मतलब ये जो थंब प्रिंट वाला जो काम था वो सारे में लैंग्वेज ये से वर्नाकुलर और ये इस एक्सपेक्ट को डील कर रहा था। मतलब आइडिया वही था कि मतलब अंगूठा छाप जो मतलब एक वो लेबर क्लास में ना एक अब्यूज है, मतलब उस तरह गाली की तरह यूज करते हैं। मतलब हम लोग भी वो सुनते हुए बड़े हुए थे कि मतलब हमारे फादर से कि मेरे घर में मतलब 3 लोग माइनिंग में थे, मतलब तो मतलब हम लोग अंगूठा छाप है, तुम लोग पढ़ो ऐसे करके। जब मैं पहली बार जब दिल्ली में जब फोटोग्राफ्स लेने के लिए गया तो वो मेट्रो वर्कर थे वहाँ पे मंडी हाउस में, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा फोटो मत लीजिए, हम लोग अंगूठा छाप, जबकि मतलब मेरा खुद का भी वो पर्सनल वो था और मैं इसी चीज पे वो जानना चाहता था। तो ये जो डोंकी वर्कर जो है जो मैंने काम किया था तो वो मैंने कॉलेज में किया था, मैंने डोंकी ड्रॉ किया था। और वो ये उस टाइम में मयूर विहार में मैं रहता था, तो सारे वर्कर को मैं इनवाइट करता था स्टूडियो पे चाय और कॉफी के लिए कि मतलब वो कैसे देखते हैं इसको, मतलब उनको क्या लगता है। और वो फिर एक थंब प्रिंट देते थे, तो वो करीब 300 के आसपास में लोगों से मिला था मैं। ये करीब 1.5-2 महीने का पूरा प्रोसेस था। तो मतलब वो एक मतलब वो लेबर के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरा भी एक एक्सपीरियंस था, उनका भी एक्सपीरियंस था। तो वो एक मतलब एक विजुअल लैंग्वेज में मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता था। तो वो एक मैंने वो डोंकी का जो ड्राइंग था, फिर वो उसका प्रोसेस और वो जो फाइनल जो वो था वो डिस्प्ले हुआ। ये काम देखिए। बट इसमें लैंग्वेज का कभी बैरियर आपको फेस हुआ? अब जैसे हम काम कर रहे थे लोगों के साथ एंड दे हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे आप माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैप इन लैंग्वेज पे कुछ अहम चीज़ें या अहम एक्सपीरियंसेस उनके मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ या ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? जैसे ये ब्रिक किंग में, क्योंकि मैं भी धनबाद में रहा हूँ तो मैं खोटा मेरे को अच्छे से समझ में आता है। मतलब ये जो जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मतलब इनके साथ कोई गैप नहीं है, क्योंकि अच्छे से मैं समझता हूँ, वहाँ पे मैं रहा हूँ, मतलब जगह को सबको जानता हूँ मतलब। और मेरे काम में जो आइडिया भी था, ये जो लोकल जो स्लैंग्स है, जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब ओरल जो है, तो मैं जानबूझ के भी वो टाइटल अपने सारे काम में उस तरीके से रखा हो। वो अंगूठा छाप या अपना हाथ जगन्नाथ भी वो उस तरीके से, जैसे वो पाम का फोटोग्राफ्स है तो मैंने लकीर का फकीर, बट कोई ऐसा मतलब लकीर का फकीर से काम का कोई लेना देना नहीं है। वो जो वर्क है पाम हिस्ट्री को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब इसको डिनाई किया था, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जब मैं ये ग्राउंड पे बात कर रहा था कि हमारे नसीब में ये लिखा है, यही होगा, मतलब इस तरीके से, मतलब इतने लोग इस पे बिलीव है, तो मैं सेम चीज को विजुअल के थ्रू वो नरेट कर रहा ये। हाँ, ये तो मैंने वो इनका जो पेट लाइन है उसमें वो एलईडी ब्लिंक होता है। काम का टाइटल है लकीर का फकीर, मतलब बट इंग्लिश मीनिंग है मास्टर ऑफ लाइन। तो ये अपने काम में तो स्किल है, मतलब प्रॉपर, मतलब वो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो कर रहे हैं, मतलब इतना परफेक्ट, इतना स्किल है। तो बट एक पर्टिकुलर कोई सोसाइटी है जो उसको हम लोग उस तरीके से देख रहे हैं, मतलब हिट किए, तो उसके उसको क्रिटिक करता है। ये तरीके से मैं डील करता हूँ काम में। तो वो वर्नाकुलर चैलेंज जो जूलियस बात कर रहा था, आई डोंट थिंक दैट applies to you because you were able to understand कि क्या exactly हो रहा है क्या नहीं, तो वो इशू कभी आप फेस नहीं किया? मतलब वो तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उड़ीसा में हो सकता था, बट उड़ीसा में प्रॉपर ट्रांसलेटर के फ्रेंड सर्कल था। तो मतलब वो जो मैंने जितने मतलब एकदम डीप रिसर्च तो नहीं था, बट जितना किया उतना
अवेयर था मैं, चीज़ों को समझ में आ रही थी मतलब और वो इंटरेस्टिंग भी था मतलब साउंड का भी एक जो ऑडियो का और इसका जो लैंग्वेज का जो पावर होता है जैसे विजुअली अगर एब्स्ट्रैक्ट था मेरे लिए। Brilliant. Any other questions? Well, Virender is here. Fascinating work, as you can see. इनका काम अभी तो टिराले में आने वाला है, so you'll be able to see a lot more on that. Virender, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से कि आपने जो अभी तक इतना काम किया है, have you ever had a chance to, and this might be my lack of knowledge on this, on your practice, कि local craftsmen या local artisans के साथ मिलके कभी आपने किसी चीज़ पे काम किया, एंड व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन ऑन क्राफ्ट एंड हाउ यू वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर वर्क? क्योंकि हमारे कंट्री में तो आर्ट और क्राफ्ट का बहुत बड़ा डिवीजन है जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है उस हिसाब से, बट कभी आपने ये इसके बारे में सोचा है? मतलब देखा जाए तो मतलब ये इसी प्रोजेक्ट में ये ब्रिक किल का जैसे मैं बोला कि मैं टेराकोटा का जो पूरा प्रोसेस है मैंने ये ब्रिक यूनिवर्सिटी डिजाइन लेके गया था, तो मतलब ये एक तरह से प्रॉपर कोलैबोरेशन भी था। मैं डिजाइन दिया और वो पूरा टेक्निक स्किल मतलब क्ले का कंपोजिशन फायरिंग का ये ट्रेडिशनली कैसे फायर करते हैं, तो वो मतलब कभी भी मुझे ऐसा चांस मिलता है क्राफ्टमैन के साथ कोलैबोरेट करने का, वो तो सोने पे सुहागा जैसा है। And that is something you want to explore in the future, because I think, especially as talented contemporary artists such as yourself, the collaboration that you can do with these artisans जो इतने सारे materials पे काम करते हैं और आप तो materials पे interested भी है, you are somebody who likes to explore different materials. I think वो combination काफी be like a brilliant piece of work, कुछ भी आप करें with different materials, because you like that. तो उस हिसाब से तो आप देख ही सकते हो। नहीं वो तो एकदम मैं उसके लिए रेडी है। I think that's brilliant. Any other questions, guys? Sarvesh. Hi. SK, please go ahead. Hello. Sarvesh. I want to ask one thing. Did you face any controversy while using the title like Apna Jagannath? Because I want to ask that because earlier we have watched a film like Kamine, तो उसमें कंट्रोवर्सी हुआ था कि अपना जगन्नाथ को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुआ था, तो डिड यू फेस एनी कंट्रोवर्सी इन दैट टाइटल? Because of the religious name Jagannath, Lord Jagannath का नाम उसमें यूज हुआ है. Did you face any of that? क्योंकि ये वाले वर्क में शायद क्योंकि मैं वहाँ पे तो पूरे टाइम था भी नहीं, क्योंकि लास्ट में डिस्प्ले हुआ और मैं बेंगलोर चला गया था. वहाँ पे जो संदीप आप लोग बता सकते हैं मतलब ऐसा क्या, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो इस तरह के टर्म आ रहे थे जब मैं वो लोकल ये सब जिनके साथ ये काम कर रहा था, जिनका वो इंटरव्यू कर रहा था, कि वो मतलब एक ही वर्ड को कितने इंटरप्रिटेशन कितने तरीके से रीड कर रहे हैं मतलब, तो वो ये सब आ रहे थे. और वो इंटरव्यू में भी था मतलब जो ये काम कर रहे थे, जो जिनके साथ मैं बात कर रहा था. डिस्प्ले का तो पता नहीं. नहीं, I think I can say that कि जब डिस्प्ले हुआ था because the fact that it was made out of the neem tree, तो that was a big thing because the Jagannath idol is made out of the neem tree. तो वो तो बहुत बड़ा एक कनेक्शन था. बट एट द सेम टाइम जैसे आपने इसको सेंसिटिवली डिजाइन किया था और ऑडियो का भी कंपोनेंट था, ऐसा कोई एग्जीबिशन में nobody raised a huge human crowd about it. But they were very intrigued with the work. I'm sorry I can't find a picture of it for some reason. Later I would have shown it. I think Anand, you have a question? Please go ahead. Yeah, Virender जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ, मुझे जानना था कि आप कोई ऐसे डिज़ाइन के ऊपर कुछ क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन की, ताकि ऑनलाइन वैसे पॉसिबल नहीं बट आप ऐसे कुछ क्लासेस लेते हैं? हाँ, मैं मतलब क्लासेस मतलब सरवाइव करने के लिए क्लासेस लेता हूँ, मतलब वैसा कुछ नहीं है मतलब अपने नहीं, वो ठीक है, हम लोगों को समझना है सीखना है, तो ऐसे ऑनलाइन अगर हम लोग करना है तो हम कैसे ज्वाइन करें कुछ?
मतलब वैसा तो कोई क्लासेस नहीं है, क्योंकि मैं वो सेमेस्टर NID में लेता हूँ और दूसरा अशोका यूनिवर्सिटी में, और दोनों का अपना क्राइटेरिया है। पर्सनल नहीं लेते हो? पर्सनली पर्सनली नहीं लेते हैं, लेकिन हम जरूर बात कर सकते हैं, अगर आप इतना ये है तो जरूर हाँ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके सर, आई विल कनेक्ट यू सर, कनेक्ट विद। थैंक यू। Thank you. Sarveshwar, do you still have a follow-up question? No, sir. Thank you. Ajay, तो Virendra, I think, sorry, I think SK has a question. Go for it, SK. है सरोज बोल रहा हूँ जी। हाँ, सरोज। देन जी। हाँ हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो बहुत है। मैं आपको क्वेश्चन तो सपोज आर्टिस्ट जो न्यू अभी बर्न हो रहा है, जो आर्टिस्ट कॉलेज से निकलते बाहर आते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ के बाहर आते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, वो इतना भास्ट प्लेस है, भास्ट एरिया है कि इसको लेके वो आगे बढ़े, ऐसे वो सब कंफ्यूज में हो जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना? तो उसमें कोई कोई सब्जेक्ट चूज करता है कि इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा आर्टिस्ट जैसा हम भी नाम कमा सकते हैं। तब मतलब फंस जाते हैं, मतलब उसके जानकारी उनको नहीं मिलता है, उसे कहीं भी वो अटक जाते हैं, और कहीं कहीं दूसरा आर्टिस्ट के कामों को भी फॉलो करके उसमें भी कॉपी बना के भी थोड़ा काम करते हैं। तो इसलिए बहुत आर्टिस्ट क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको जीने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी आर्टिस्टिंग चाहिए। तो इस हालात में बहुत आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से मेरे फ्रेंड बहुत आर्टिस्ट क्विट कर जाते हैं, दूसरा फील्ड में चला जाता है, कहीं छोटा मोटा नौकरी में जाते हैं। मेरे हिसाब से क्या करने से वो आर्टिस्ट आगे बढ़ सकते हैं, उसका मुझे की पॉइंट होगा। जैसे कि थोड़ा मतलब मैं जो मीडियम में काम कर रहा हूँ, मीडियम मुझे कंफर्टेबल होता है, फिर वो मीडियम दूसरा काम के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, तो मीडियम में चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरा मीडियम में मेरा मास्टरी नहीं है, उसमें वो फंस जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसका थोड़ा कुछ आगे बताइए। मतलब जैसे मैं बात कर रहा था कि मतलब फील्ड का जो मतलब अपने प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब और जैसे मैं जो हूँ मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब और कोई नहीं हो सकता है। और अगर शायद मैं अभी और मैं इसलिए इस पे बात कर पा रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस है, वो मेरा चीज़ है, मैं उसको अच्छे से बोल सकता हूँ। और तो इसलिए मतलब जो जहाँ से जिसका जो अपना एरिया है या जो है, उसको अपने अंदर ही देखने का जरूरत है, सब कुछ वहीं पे है। मतलब अब जैसे मैं एक बार भुवनेश्वर गया और मुझे इतनी सारी चीज़ें की कि मतलब और मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जियोग्राफिकली और जैसे हम बात कर रहे थे लैंग्वेज कई सारी है, मतलब पॉसिबल भी नहीं है। तो मतलब अब जो कोई उड़ीसा का जो लोग हैं उनके पास ही इतनी सारी चीज़ें हैं, बस अपने अंदर देखने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ें है जो सर्वाइवल का, तो मतलब मैं भी सेम उसी क्लास से आता हूँ, मेरा भी वही स्ट्रगल रहा है। अगर मैं सर्वाइव कर सकता बस अपने आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। और सेक्रीफाइस इन द सेंस कि मतलब आपका मतलब जैसे मेरे को अपना काम में ही मेरा ना वो बहुत एक सुख है ना, मतलब वो मुझे इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे नहीं चाहिए मतलब जो बाकी लोगों का जो भौतिक सुख है वो शायद मेरा नहीं है। मेरा जो सुख है मतलब वो स्टूडियो में काम करके काम बना के जो खुशी मिलता है, शायद वो दूसरी चीज में मेरा नहीं मिलता जिनको जो बाकी है। तो वो तो ये बहुत पर्सनल भी है कि ये आपको क्या करना है, आपका किधर, तो वो इसको लेके डिस्कस, हाँ इसको लेके फिर अपना काम के बारे में कोई आर्टिस्ट के साथ डिस्कस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी आपका आगे बढ़ने का क्लू पॉइंट मिलता है। कहीं कहीं अटक जाते हैं ना, उसके आगे की रास्ता बंद हो जाता है, फिर कोई बोलता है ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा मीडियम में वर्क करो, दूसरा विजन लेके काम करो, इससे टाइम चला जाता है, वो भी बात है। नहीं वो इसके लिए वही मैं अभी संदीप बहुत अच्छा एग्जांपल बोल रहे थे कि वो ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों से मिलते हो उतना एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तरह का लोग मतलब फिर आपको क्या अच्छा लगता है उसमें से जो जरूरत नहीं है आप छोड़ दो, जो जरूरत है ले लो। थैंक्स सरोज। द स्ट्रगल ऑफ द आर्टिस्ट, वो लाइक हम अपने कितने भी आर्टिस्ट दोस्त से बात करें, ये स्ट्रगल पर्सनल है, ये रियल है, और एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद इट एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीरेंद्र, थैंक यू सो मच कि आप आज आए, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। योर वर्क इज ऑलवेज सो इंटरेस्टिंग टू लुक एट, एंड प्लीज एवरीबॉडी हु इज ऑन हियर make the time to go and see his work in Ceramics Trinaala. It's going to be really, really good. And
this जो भी miss कर गए ये session, this will be available on YouTube, so you can watch it again, and you can also connect with Virendra on it, and hopefully we'll be back next month with somebody else to talk to. So thank you so much, Virendra. Thank you for inviting me, and thank you all of you. Thank you, Virendra. Thanks, sir. Thank you, Virendra. Thank you. Like something. Thank you.